Dr. Umair, you can start now. Okay. Assalamu alaikum. My name is Umair Ahmed and I am assistant professor at University of Lahore. I am holding a responsibility of moderator in today's session. I warmly welcome you all and hope you all would be fine. Let's quickly go through the format of today's session. First, I will introduce our keynote speaker. Then she will help us understand the complete procedure about how to be a practicing physiotherapist in USA. After her presentation, we will start our question answer session. If you have any question or confusion about anything, you may put your question in the chat box. For this session, our keynote speaker is Dr. Mariam Patel. She completed her bachelor degree from Liaquat National University of Karachi in 2011. Then she post-graduated from East London University, UK. She passed NPT exam in 2013. Then she moved to USA, where she is now working as a practicing physiotherapist. She has more than 8-year experience in geriatrics. Now over to you, Dr. Mariam. Thank you. Assalamu alaikum. My name is so like you said, I'm just going to introduce myself a little bit more. So I did my graduation from Liaquat National School of Physical Therapy in 2011. I finished my graduation in 2011. I worked in Pakistan for about a year, and then I moved to UK to do my master's from University of East London. After that, I worked there for a year, and then I moved to US eventually. First, when I moved to US, I moved to New York. I worked in pediatrics for about 4 years. And after that, I moved to Cincinnati, Ohio. And currently I'm working in a Christ Hospital as a rehab physical therapist. Most of my career, I worked as a geriatric physical therapist. So the reason for this webinar is just to give you guys a guideline, what's the process, how to move to US, because I went through this process myself. यहाँ से मैंने शुरू किया था. I was a student here, so I know what the struggle is यहाँ से move करना to UK and US. So I just wanted to share my story, just to give you guys a little background, how you can do. If I can do it, you can do it too. So just to give you guys a background, how you can achieve going to US or UK if you want to. So that's the whole purpose of this webinar. It's just an introduction right now. So and everything जो भी हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं, it's subject to change क्योंकि immigration changes very rapidly depending on the politics जो भी world में चल रहा है, उस पे everything changes very rapidly. So जो भी हम discuss कर रहे हैं, it's not hard and fast it's going to be like that after a year or two. So it's a ever-changing process. So but I'm just sharing my story abhi, just to give you guys some hope and some basic knowledge of where to start. So the first thing we're going to talk about is about how to move to US. US का process is long. It's a quite extensive process. काफी time लगता है उसमें. But is it worth it? I would say yes. Because I'm working in the US right now, and the respect you get as a physical therapist and the opportunities you get as a physical therapist in the US is pretty good. So I would say if you are willing to put in effort and hard work, you should definitely go for US. UK also, it's your preference. I chose US because my family moved to US, but UK is the same thing. If you wanna practice in UK, it's a pretty good job market over there too. So पहला हम शुरू करेंगे the process for the US. The first thing you need to know for US is to apply for credentialing. Now, credentialing क्या होती है? Credentialing is basically comparison between foreign education curriculum to the US standard curriculum. So everybody, if you want to work in US, they need to know that you are qualified like a US citizen. So they compare your
they compare your your curriculum to US standard curriculum. और उसके लिए it's a independent body. They ask you to hire that body to get all the information, and then from there they compare करते हैं, credential करते हैं, और then they tell you कि भाई आपका either your curriculum is equivalent to US or you have some deficiencies to overcome. So that's the first step जो आपको करना होता है. जो agency use करते हैं credentialing के लिए, it's FCCPT. There are other agencies too, but this one is the most reliable one. So FCCPT is the Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy. So what this do, ये जो है एक independent organization है. Now ये जो है वो सारे आपकी जो information है from your side, like from the student, from students college, वो सारी information collect करती है, फिर independently जो है वो सारा जो है evaluate करती है, और evaluate करने के बाद अपनी एक report बनाती है, और रिपोर्ट बनाने के बाद जो है they send it to the state. तो जो स्टेट है, यूएस की स्टेट्स जो है वो उसको रिव्यू करते हैं, और फिर जो है वो आपको एलिजिबिलिटी देते हैं कि आप टेस्ट पास कर सकते, टेस्ट ले सकते हो कि नहीं ले सकते. तो जो FCCPT है उसमें जैसे आप एंटर होगे उसकी वेबसाइट पे, so there are like different types of services they provide. टाइप 1 सर्विस होती है, एक होती है एजुकेशनल क्रेडेंशियल रिव्यू सर्विस होती है, और एक होती है न्यूयॉर्क क्रेडेंशियलिंग वेरिफिकेशन होती है. टाइप 1 में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं. एक होता है जो वीजा पर्पस के लिए चाहिए होती है, और दूसरा होता है जो कि आपको सिर्फ लाइसेंस के लिए चाहिए होती है. तो बिकॉज हम लोग पाकिस्तान से जा रहे होते हैं और हमको वर्क वीजा लेना होता है, तो फर्स्ट थिंग यू जो सबको चाहिए होता है वो होता है हेल्थ केयर सर्टिफिकेट इमिग्रेशन के लिए. तो इमिग्रेशन के लिए जो फर्स्ट आपको रिक्वायरमेंट होती है वो होता है टाइप 1 सर्टिफिकेट. आपको टाइप 1 सर्टिफिकेट लेनी होती है. उससे आपको क्या होता है, आपकी क्रेडेंशियलिंग इवैल्यूएशन भी हो जाती है, आपकी लाइसेंस वेरिफिकेशन भी हो जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की भी वेरिफिकेशन हो जाती है, और आपको फिर उस सब के बाद जो है आपको एक हेल्थ केयर सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आप दिखाते हो इन ऑर्डर टू गेट द वर्क वीजा. So if someone wants to come to US, अगर किसी को वर्क वीजा पे US पे आना है तो आपको टाइप 1 सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, unless you're like a spouse of a US citizen और आप ऑलरेडी जा रहे हो किसी दूसरी इमिग्रेशन कैटेगरी पे. तो मैं जो है वो वर्क वीजा पे गई थी, तो मैंने ये टाइप 1 अप्लाई किया था. अब जो लोग ऑलरेडी US में हैं, like either on spouse visa or a different immigrant category or whatever, वो जो है फिर उनको टाइप 1 की जरूरत नहीं होती है. उनको जो है वो एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स रिव्यू करवाना होता है. तो यहाँ पे जो भी सारी जो भी क्राउड यहाँ पे जो पाकिस्तान से यूएस जाएगा उसके लिए जो है टाइप 1 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज उनको जो है वो इमिग्रेशन करवानी होती है ऑन वर्क वीजा. तो और देयर इज स्लाइट डिफरेंस. अगर all the 49 states requires type 1 evaluation mostly, अगर आप फॉरेनर्स में जा रहे हो, पर न्यूयॉर्क की जो वेरिफिकेशन है, न्यूयॉर्क जो स्टेट है वो इंटायरली सेपरेट है. तो वो जो है आपको डिफरेंट क्रेडेंशियलिंग मांगती है. तो मैंने जो शुरू किया था वो मैंने अपनी क्रेडेंशियलिंग शुरू की थी वो न्यूयॉर्क स्टेट से शुरू की थी कि मुझे न्यूयॉर्क में जाके रहना था. तो अगर आपका न्यूयॉर्क जो है वो आपका एम है कि आप न्यूयॉर्क जाके रहना है तो आपकी प्रोसेसिंग डिफरेंट होगी, और अगर आपका एम है कि आपने किसी और स्टेट जाके रहना है उसकी आपकी प्रोसेसिंग डिफरेंट होगी. तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. तो आपको सबसे पहले जाने से पहले एक माइंड बनाना होता है कि वेयर डू यू वांट टू एंड अप. सो इफ यू वांट टू एंड अप इन यूएस इन न्यूयॉर्क, then it's a different process. If you want to end up in a different state, depending आपके पास वहाँ पे कोई फैमिली रहती है या वो स्टेट जो है वो आपको ज़्यादा कनेक्ट करता है, whatever the reason is, अगर जो है आप दूसरे स्टेट जाना चाहते हो तो उसके लिए आपका डिफरेंट प्रोसेस होगा. तो आपको थोड़ा सा पहले जो है वो थोड़ा सा माइंड स्टॉर्मिंग करनी होती है कि आपका एक्चुअली अल्टीमेट गोल क्या है, लेकिन कैसे जो है आपने जाना है यूएस और कहाँ जाना है आपने यूएस. तो इसको मैं आपको फर्दर थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन just to be just to
अभी जो है बस आप ये रखें कि आपने अगर इमिग्रेशन के लिए जो है वो जाना है, इमिग्रेशन करवा के वर्क वीज़ा पे जाना है अगर आपने यूएस, तो इसके लिए आपको टाइप 1 सर्विस जो है वो करनी सबसे ज़रूरी है। अच्छा, अब टाइप 1 जब आप सर्विस जो है वो आप करते हो कि भाई हमने ये चूज़ किया, हमें इमिग्रेशन करवाना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एफसीसीपीटी की तरफ से, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हो, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हो उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में। आपने कहाँ से बीएस किया है, कहाँ से डीपीटी किया है, कहाँ से आपने मास्टर्स किया है, फिर आप बताते हो कि आपके पास लाइसेंस कहाँ से है, अगर आपका लाइसेंस है वो क्योंकि पाकिस्तान में तो यूजुअली आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है टू वर्क एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो आपको एक वेवर फॉर्म आपको सेंड करना होता है कि भाई आप यहाँ पे जो है वो लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो दे कंसिडर दैट टू। फिर उसके बाद जो है आपको अपना टोफल लेना होता है, टोफल के स्कोर जो है वो डायरेक्टली सेंड करना होता है एफसीसीपीटी को। फिर वो एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जो कि आपको नोटराइज कराना होता है, और आपको फोटो और सिग्नेचर पेज को नोटराइज करा के भेजना होता है। अब जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो फिर आपके पास एक पूरी फाइल खुल जाती है एफसीसीपीटी में। एफसीसीपीटी में पूरी फाइल खुलेगी तो वो यू कैन गो एंड सी कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स अभी आपने फिलफिल कर दी हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है वो अभी बाकी हैं आपको फिलफिल करने के लिए। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है जिस पे जो है सारी इवैल्यूएशन जो है वो कंसिडर करते हैं ये लोग, इज द सिलेबस। तो सिलेबस जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली सेंड करती है एफसीसीपीटी को। तो वो सिलेबस इट हैज टू बी एक्सटेंसिव, क्योंकि उसके बेसिस पे वो इवैल्यूएट करते हैं। अगर वो सिलेबस जो है वो आपने ब्रीफ दिया है तो दे वांट नो कि आपने क्या क्या पढ़ा है वो 5 साल के जो आपने 5 साल पढ़ाई की है। तो वो सिलेबस इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उस सिलेबस के बिना पे जो है यू गोना गेट डेफिशिएंसीज, और यू आइदर यू गोना गेट डेफिशिएंसीज और आइदर यू नॉट गोना गेट डेफिशिएंसीज। तो इट्स दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब जो डेफिशिएंसीज आती हैं वो फिर आपको जो है ओवरकम करनी पड़ती हैं। तो द मोस्ट जो अगर आप सिलेबस पे वर्क करते हो, आपके पास एक्सटेंसिव सिलेबस है, तो द चांसेस ऑफ हैविंग डेफिशिएंसीज आर लेस। जितनी कम डेफिशिएंसीज होंगी उतना इजी आपका प्रोसेस होगा, उतनी जल्दी आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी टेस्ट लेने के लिए, एलिजिबिलिटी लेने के लिए, टेस्ट के लिए। तो ये जो है, और इसके लिए जो है आपको यूनिवर्सिटी जो है वो डायरेक्टली सेंड करती है। तो when you can apply to an online application, you can submit your degree, you can submit your all the postgraduate certificates होते हैं वो सब आप submit करते हो, but the university has to submit separately, and then they can like compile it, and then they can check like कि authentic है कि नहीं है, like they need to be they are very strict about like कि आप जो है वो चीजें नहीं भेजें, यूनिवर्सिटी डायरेक्टली भेजे डॉक्यूमेंट्स टू एफसीसीपीटी। अब जब एफसीसीपीटी को सारी चीजें मिल जाती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, देन दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन टेक्स ऑलमोस्ट 3 months। उस 3 months में दे वो इवैल्यूएट करते हैं आपका करिकुलम यूएस करिकुलम से, और यूएस करिकुलम इवैल्यूएट करने के बाद दे फिर बोलते हैं कि भाई ओके नाउ आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो ये सारी चीजें में आपका क्रेडिट स्कोर है, बट ये वाली चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई, तो ये इसमें आपकी डेफिशिएंसीज है। अब वो डेफिशिएंसीज जो है वो आपको फुलफिल करनी होती है। और ये डेफिशिएंसी जो है वो इट वेरीज कंसिडरेबली, हर बंदे का इंडिविजुअल होता है। किसी मतलब आपका सिलेबस सेम होने के बावजूद भी लाइक समटाइम्स यू गेट डिफरेंट डेफिशिएंसीज, तो उसका यू कैन प्रिडिक्ट कि भाई कौन सी डेफिशिएंसी लगेगी। The thing you can do is like submit an extensive syllabus so they know like आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, और उसके बाद जो आपकी डेफिशिएंसीज लगती हैं तो फिर you have to fulfill that। जो मुझे डेफिशिएंसीज लगी थी जनरल एजुकेशन में वो बायोलॉजी और साइकोलॉजी पे लगी थी। तो और जो प्रोफेशनल एजुकेशन में मुझे डेफिशिएंसीज लगी थी वो लगी थी कंसल्टेशन, स्क्रीनिंग, डेलीगेशन एक सब्जेक्ट था वोस्ट में, कल्चरल कॉम्पिटेंसी में, और बेसिक लाइफ सपोर्ट और लाइक फर्स्ट एड कोर्स, उस पे मुझे डेफिशिएंसीज लगी थी। अब देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड ओवरकम दोस डेफिशिएंसीज। एक जो मोस्ट इजी प्लेस है जो कि जनरल एजुकेशन के लिए होती है, उसको बोलते हैं कॉलेज बोर्ड कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन प्रोग्राम, क्लैप एग्जाम। तो वो उसका सेंटर जो है वो लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप जाके जो है रजिस्टर करते हो अपने आप को।
रजिस्टर करने के बाद आप घर में जो है वो अपनी प्रिपरेशन करते हो। वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एग्जाम लेते हो। एग्जाम आपका 1 घंटे का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं एंड आपको फौरन रिजल्ट मिल जाता है कि आइदर यू पास्ड इट और नॉट। 50% जो है वो कट ऑफ मार्क होता है, आपने पास करते हो। और वहाँ पे ये होता है कि दे सेंड योर रिजल्ट डायरेक्टली टू FCCPT। तो एवरीथिंग FCCPT जो रिक्वायर करता है, इट हैज टू बी सेंड थ्रू द एजेंसी और थ्रू द यूनिवर्सिटी। आप जो है वो खुद से सेंड करोगे तो दे नॉट गोना एक्सेप्ट इट। The club or college board has to send directly to FCCPT result। और आप पहले ही जब रजिस्टर करते हो तो आप बोलते हो कि मुझे अपना स्कोर जो है वो सेंड करना है FCCPT को। सेम थिंग आप जब टोफिल लेते हो तो टोफिल आप बोलते हो कि मुझे अपना स्कोर सेंड करना है FCCPT को, तो वो उनके पास डायरेक्ट स्कोर चला जाता है और वो जो है फिर उसको कंसिडर करते हैं। एक दूसरा जगह है जहाँ से आप प्रोफेशनल एजुकेशन ले सकते हो, एजुकेशनल क्रेडिट ले सकते हो, वो है फिलीपींस रिहैब इंस्टीट्यूट। वो काफी कोर्सेज कवर करते हैं, जैसे कंसल्टेशन स्क्रीन डेलीगेशन वहाँ पे कवर करते हैं, कल्चरल कॉम्पिटेंसी वहाँ पे कवर की जाती है। डिफरेंट बहुत सारे उनके पास कोर्सेज हैं, उसमें से आप पिक एंड चूज करते हो जो आपको डेफिशिएंसीज आती हैं, वो आप डेफिशिएंसी जो है वो वो कोर्सेज पिक करके वो आप कोर्स करते हो और कोर्स करने के बाद वो डायरेक्टली जो है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो FCCPT को सेंड करते हैं। दूसरा कराची में जो है वो ISTA यूनिवर्सिटी जो है वो ऑप्शन है, वो आप करते हो। उसमें आपको इंटायर सेमेस्टर के लिए एनरोल होना पड़ता है। सेमेस्टर के लिए आप एनरोल होते हो, फिर वहाँ से आप डेफिशिएंसीज कंप्लीट करते हो और फिर वो लोग जो है वो अपना सिलेबस और अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो FCCPT को सबमिट करते हैं। और भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं जो कि करवाते हैं ऐसे कोर्सेज। मैंने जो अपने प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज लिए थे वो मैंने डायरेक्ट US से लिए थे। तो US में मैंने ऑनलाइन ये कोर्सेज किए थे और ऑनलाइन कोर्सेज करने के बाद जो है उन्होंने मेरी ट्रांसक्रिप्ट सेंड की थी FCCPT को। बट ऑब्वियसली USA कोर्सेज दे वर मच मोर एक्सपेंसिव। जो फिलिपीन रिहैब इंस्टीट्यूट और ISTA यूनिवर्सिटी दे आर द चीपेस्ट ऑप्शन, अगर आपको जो है वो अपनी डेफिशिएंसीज पूरी करनी है। अब जब डेफिशिएंसीज आप कर लेते हो उसके बाद जो है आप FCCPT पे री-अप्लाई करते हो, री-वैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो। री-वैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे इसका मतलब कि जो आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए हैं FCCPT को, they're not gonna address that until आप री-वैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। जब आप री-वैल्यूएशन अप्लाई करोगे तो वो एडिशनल जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जो कोर्सेज किए हैं, वो उनको जो है वो इंक्लूड करेगा अपने उसमें रिपोर्ट में, और फिर आपको री-वैल्यूएट करके फिर आपको बताएगा कि either you have आपकी क्रेडेंशियल्स इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, या फिर आपको बोलेगा कि नहीं अब आपको इसमें डेफिशिएंसी है। तो इट्स बेटर कि आप अपना टाइम लेके सारी डेफिशिएंसीज पूरी करो और सारी डेफिशिएंसीज पूरी करने के बाद जो है आप री-वैल्यूएशन के लिए डालो। Because every time you apply to FCCPT, it's going to cost you the fee. So it's a pretty expensive fee. So you have to make sure कि भाई आपने जो है सारी डेफिशिएंसीज पूरी कर ली हैं और जो है उसके बाद आप अप्लाई करो। There's another program FCCPT अलाउ करता है, प्लान प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि जब आप उसके लिए अप्लाई करते हो तो वो आपकी रिपोर्ट देखते हैं, आपको बोलते हैं कि अच्छा ये डेफिशिएंसीज हैं आपके पास, आप इस इंस्टीट्यूट में जाके ये डेफिशिएंसी कंप्लीट करो, इस इंस्टीट्यूट में जाके ये डेफिशिएंसी कंप्लीट करो, और ये सारी डेफिशिएंसीज कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आप हमें बताओ, तो हम आपको देख के बताएंगे कि अब आपको और डेफिशिएंसीज लगेंगी कि नहीं लगेंगी। तो वो आप ले सकते हो प्रोग्राम। इट्स एडिशनल कॉस्ट, ऑब्वियसली दे कॉस्ट लाइक अराउंड $300-400 फॉर प्लान सर्विसेज। पर वो सर्विसेज लेने के बाद जो है वो आपको बता देंगे कहाँ से डेफिशिएंसीज पूरी करनी है, पर आपको खुद वो कोर्सेज लेके डेफिशिएंसीज पूरी करनी होती है। तो it's an additional cost. If you are thorough, if you know कहाँ से डेफिशिएंसीज पूरी करनी है, you don't need to take plan. But if you want to be sure, you want to make sure भाई आपके कोई डेफिशिएंसी दोबारा नहीं लगे, you can take plan and you can use that service. अच्छा, जब आप री-वैल्यूएशन करवा लेते हो तो फिर आपके पास आपको रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद वो बोलते हैं कि अच्छा नाउ योर करिकुलम इज इक्विवेलेंट टू US करिकुलम। फिर उसके बाद जो है यू अप्लाई फॉर स्टेट लाइसेंस। सो एवरी स्टेट इन US हैज अ डिफरेंट हैज देयर ओन एप्लीकेशन। तो if you're planning on going to New York, उनका अलग एप्लीकेशन होगी। If you're planning on going to Ohio, उसका डिफरेंट होगा। If you're planning on going to Michigan or Wisconsin or Texas or Florida, जहाँ भी आप जाओगे उसकी अलग एप्लीकेशन होगी जो कि आपको भरनी होगी, और
फिर वो जो है आपको एलिजिबिलिटी देंगे टेस्ट लेने के लिए। तो HSTPT ने क्या किया, जिस आपको सिर्फ क्रेडेंशियलिंग करवाई, क्रेडेंशियलिंग करवा के आप उनको बोलोगे कि अच्छा मुझे जो है वो फ्लोरिडा का लाइसेंस लेना है, तो वो आपकी रिपोर्ट जो है वो फ्लोरिडा सेंड कर देंगे। अब आप फ्लोरिडा स्टेट लाइसेंस को जो है वो अप्रोच करोगे, उधर उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे, एप्लीकेशन भरने के बाद फिर वो आपको बताएंगे कि आपके पास आप एलिजिबल हो टेस्ट लेने के लिए कि नहीं लेने के लिए। अब हर स्टेट का जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। कुछ स्टेट जो हैं वो टोफल मांगते हैं, कुछ स्टेट्स नहीं मांगते हैं। तो बट सारे एवरी स्टेट रिक्वायर्स क्रेडेंशियलिंग। तो HSTPT की क्रेडेंशियलिंग तो करवानी जरूरी ही है, क्योंकि एवरी स्टेट रिक्वायर्स एजुकेशन क्रेडेंशियलिंग। अब उसके बाद 45 स्टेट्स हैं जो कि टोफल मांगते हैं, और 5 स्टेट्स हैं जो कि नहीं मांगते हैं। तो आपको अगर चूज करना है, इफ यू आर ओपन टू गो एनीवेयर, यू कैन चूज लाइक उस वैसे आप चूज कर सकते हो कि आपको कुछ स्टेट पे जाना है। अगर आपको टोफल नहीं देना है तो आप जो है वो उन 5 स्टेट्स पे जाओगे जहाँ पे टोफल रिक्वायरमेंट नहीं है। पर HSTPT यूजुअली रिक्वायर टोफल, तो लाइक टोफल देना पड़ता है। 29 स्टेट्स हैं जो कि एडिशनल एग्जाम मांगते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस असेसमेंट टेस्ट। वो उनका अपना एथिकल टेस्ट होता है, अपने स्टेट का एथिकल टेस्ट होता है। तो इफ यू गोना गो थ्रू दोस लाइक इफ यू गोना अप्लाई फॉर दोस 29 स्टेट्स, उसके लिए उनके लिए जो है फिर आपको एक एडिशनल टेस्ट देना पड़ता है। जब आप उस पर अप्लाई करते हो इंडिविजुअल स्टेट लाइसेंस की एप्लीकेशन, उसके बाद जो है आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कराते हो। जब वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद फिर वो देते हैं एलिजिबिलिटी आपको कि आप नाउ यू आर एलिजिबल टू टेक द नेशनल एग्जाम, नेशनल फिजिकल थेरेपी एग्जाम। अब आफ्टर यू गेट एलिजिबिलिटी फ्रॉम द स्टेट, फिर आप रजिस्टर करवाते हो फेडरेशन स्टेट बोर्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी। तो फेडरेशन स्टेट बोर्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी इज ऑर्गेनाइजेशन जो कि NPT नेशनल फिजिकल थेरेपी एग्जाम कंडक्ट करती है। नाउ whether you are a Pakistani graduate or you're an Indian graduate or a US graduate, everyone has to take the national physical therapy exam. कोई भी like even like no one is exempt from taking that exam. It's a 5-hour exam जो कि आपको लेना होता है। साल में जो है उसे 4 टाइम जो है 4 टाइम जो है वो कंडक्ट होता है ये एग्जाम। So every quarter एग्जाम कंडक्ट होता है। आई थिंक जनवरी में होता है, फिर अप्रैल में होता है, फिर अक्टूबर में होता है, और ऐसे। तो इट्स लाइक इट्स 4 टाइम्स अ ईयर एग्जाम होता है। इसकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है वो 1 महीने पहले खत्म होती है। तो इफ यू वांट टू टेक द एग्जाम इन अप्रैल, देन आपकी रजिस्ट्रेशन यू हैव टू रजिस्टर बाय March 1st। 1 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। इसके लिए एग्जाम लेने के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है, जो कि यूएस नेशनल जो यूएस सिटीजन होते हैं उनके पास होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। अगर आप फॉरेन ग्रेजुएट होते हो तो आप अप्लाई करते हो AIN नंबर के लिए, वो नंबर आपको मिलता है। और तो जब आप जब ये फीस भर देते हो कि भाई आई वांट टू टेक द टेस्ट, फिर आपको मिलता है ऑथराइजेशन टू टेस्ट लेटर। तो FSBPT जो है, जो फेडरेशन स्टेट बोर्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी, वो आपको इशू करता है ऑथराइजेशन टू टेस्ट लेटर। वो ऑथराइजेशन टू टेस्ट लेटर आप लेके जाते हो, और लेके जाके आप फिर वहां से आप प्रोमेट्रिक टेस्ट सेंटर जो है वो उसके पास जाते हो, और वहां पे जाके आप अपना टेस्ट जो है वो स्केड्यूल करते हो। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम जो आपको लगता है वो क्रेडेंशियलिंग में लगता है। और क्रेडेंशियलिंग के बाद जो है जो आपको टाइम लगता है वो लगता है रीवैल्यूएशन में, लाइक डेफिशिएंसीज पूरी करने में और रीवैल्यूएशन करवाने में, और उसके बाद फिर जो है वो स्टेट की एप्लीकेशन करने में। तो स्टेट की जो एप्लीकेशन है वो आप इजीली आपको मतलब इट डजंट टेक दैट लॉन्ग, इट यूजुअली टेक्स लाइक अ मंथ और सो, और उसके बाद जो है वो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट जब ये आपको मिलता है ऑथराइजेशन टू टेस्ट लेटर, देन दैट लेटर यू कैन टेक टू द एम्बेसी टू गेट योर वीजा। नाउ ये सब कराने के बाद भी द बिगेस्ट हर्डल जो पाकिस्तानी लोग जो हम लोग फेस करते हैं, वो फेस करते हैं कि हाउ टू गेट टू US, क्योंकि टेस्ट जो है वो कंडक्ट होता है सिर्फ US में। इट्स आइदर इन US और देयर इज ओनली वन अदर सेंटर इन कनाडा जो कि ये टेस्ट कंडक्ट करता है, और पूरी वर्ल्ड वाइड जो है देयर इज नो अदर वे कि आप टेस्ट लो। तो आपको यू हैव टू बी इन US टू टेक द टेस्ट। Now, वहाँ पे जो है it's like a very difficult, like how to get to US, especially for Pakistani people, like because they are like very strict on giving visas and stuff to Pakistani people. So उसके लिए there are ways you can go to US.
some ways are cheaper, some ways are not. Some are like, you know, a little tricky, or some are very limited. The first thing you can do is to apply for a visit visa. Once you get the attestation, like, you know, authorization to test letter, you can take that letter to the embassy, and you can say that, like, you know, I've scheduled my test. This is the date where I'm going to get the test. So I need the visa to go there and take my test. इसके लिए you can be sponsored by a US citizen. You can be sponsored by a prospective employer. So if you are like proactive, or if you already have a job offer from US, they can send you a letter. They can give you a letter saying that, you know, we are looking forward to working with that person. He's going to come and, like, you know, take the test. Once he's going to pass the test, we can apply for his work visa. So that's a plus, like, you know, you can have that. Hello. Miss, you can continue. तो फिर आप एम्बेसी जाते हो, एम्बेसी जाके आप जो है वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो, और फिर जो है वो आपको बताते हैं कि आपको विजिट वीजा मिला कि नहीं मिला. नाउ विजिट वीजा के लिए you need to have some backup in Pakistan, because they all they want to make sure is कि आप वहाँ जाओगे तो वहाँ जाके आप रह नहीं जाओगे. So you need to be, like, you know, by yourself when you go there. You need to show that you have ties back in Pakistan. Like, you know, you are going to come back in Pakistan. You're not just going to go there and, like, you know, stay there. Like, you know, so you need to have ties back in Pakistan. And if you have like a letter from prospective US employer, it's good, because then they know that, like, you know, you have something after, like, you know, after you pass a test, then you have a job offer already, like, you know, for you. So आप फिर work visa पे आओगे. तो दूसरा प्रोसेस है जिससे आप जा सकते हो यूएस में एग्जाम देने के लिए, इज थ्रू स्टूडेंट वीजा. सो यू कैन अप्लाई टू अ कोर्स, like either like a certification or like 1 year master's program, or like 2 years master's program. वो apply करके you can go to US as a student on F1 visa. अच्छा, वो कोर्स जो है it has to be approved by SCVP. उससे क्या होता है, it's you have to pay the fee for the course. But like you can bring your spouse or your, like, you know, children as a dependent in that category. So if you're going on student visa, you can bring your spouse and children with you on student visa. But it's an expensive thing, because you have to pay for the entire course. फिर जब आप वहाँ जाके आप course करते हो, then you can take the test also for NPT, and you can start working. Like, you know, they have a limited number of hours you can work as a student physical therapist. So that's another like, you know, common way of going to US. मैंने अब जो है वो अप्लाई किया था, विजिट वीजा अप्लाई किया था, और मेरे पास सारे authorization to test letter था, सब था, and they didn't give me any trouble, and like I was able to get the visit visa. उसके बाद जो third way है US जाने के लिए, it's limited to New York State only. Usually ये जो है वो मिलता है जो स्टूडेंट पीटी होते हैं उनको मिलता है, but it's because it's just limited to New York, it's not very easily accessible. इसमें क्या होता है कि you go there as a physical therapy assistant. So आप जो है वो पीटी के उसमें नहीं जाते हैं, आप जाते हो as a physical therapist assistant, और आप वर्क करते हो under New York license physical therapy. जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, तो उसके अंडर आप काम करते हो. उसका इट्स अ लेंथी प्रोसेस. 6 months की आपको मिलती है एलिजिबिलिटी कि आप उसके अंडर जाओ, और उसके बाद जो है आप 6 months के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो. पर the thing is कि within those 6 months you have to pass the NPT exam. अगर आप उस 6 months में, या उसकी जो एक्सटेंशन होती है 6 months की, अगर आप पास नहीं कर सकते NPT exam, then you have to come back. So it's a limited permit होता है, जो कि आप it's good, but, like, you know, I wouldn't recommend going that route, because it's limited to New York State only, and it's like आपको जो है वो already एक New York license physical therapist वहाँ पे होना चाहिए, जो कि वो आपकी जो है गारंटी लेके भाई you're going to be working under him and stuff like that. So it takes a lot of time. But there are some agencies US में जो कि apply करती हैं limited permit लोगों के लिए, but they have like their own criteria जो कि meet करना होता है, like, you know, participant को.
पर उसके बाद वो अप्लाई करती हैं और उसके बाद जो है वो आपको आप आ जा सकते हो यूएस एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट असिस्टेंट। अच्छा, तो ये सारा प्रोसेस जो है, वंस यू गेट द वीजा टू गो टू यूएस, आपके पास ऑलरेडी आपने सब कुछ किया हुआ है, आपका जो है वो टेस्ट डेट आपको पता है, आपने रजिस्टर किया हुआ है, यू गो देयर एंड यू पास द लाइक यू नो टेक द टेस्ट लेने के बाद इफ यू पास द टेस्ट यू गेट द लाइसेंस लाइक यू नो विद इन 6 days आपके पास लाइसेंस आ जाता है। देन you are currently like then you are like you know okay to work in that state. तो अब now like हम लोग जो हैं हम हमारा एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि हम जो है वो विजिट वीजा पे गए हुए होते हैं, तो हमको जो है वो काम करने के लिए वर्क वीजा चाहिए होता है। So that's another thing, वर्क वीजा के लिए जो है वो अलग प्रोसेसिंग होती है। तो आप अपने जो है वो क्रेडेंशियलिंग करवा ली, टाइप 1 आपको मिल गया है, आपको हेल्थ केयर सर्टिफिकेट मिल गया है, तो फिर आप यू कॉन्टैक्ट विद एजेंसीज। अब इसमें जो है इट्स वेरीज, you can either contact with the agency before going through all this, before applying for the visa, to get the like you know acceptance letter के भाई job offer letter पहले ही एग्जाम लेने से पहले ही आप जो है वो एजेंसी जो है आपको लेटर दे देंगे, once you're gonna pass the test you're gonna get the job from us। या फिर आप ये सब करने के बाद कांटेक्ट कर सकते हो एजेंसीज को और बोल सकते हो कि भाई I passed the test and I'm eligible to work in this state, now I'm looking for a job, so are you hiring or stuff like that। So they say okay, yeah, you know we can hire you, we need to see your NPT exam, like you know okay आपने पास कर लिया है, ये लाइसेंस चाहिए देखना होता है उनको जो है वो हेल्थ केयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि हेल्थ केयर सर्टिफिकेट आप दो, और उसके बाद जो है वो आपसे टर्म्स नेगोशिएट करते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली साइन करना होता है। यूजुअली वो कॉन्ट्रैक्ट लास्ट करता है 3 years के लिए, सो दे आस्क यू टू वर्क फॉर देम 3 years, और 3 years के बाद जो है वो आप then you're willing to like you know then you're okay to work outside of the agency। तो वो सारे आप टर्म्स नेगोशिएट करते हो। once you okay with the term and then you say okay I'm gonna accept the job offer, you sign the job offer letter। फिर जो आपकी एजेंसी होती है और जो आपकी जॉब की जो फॉर्म होती है वो आपके लिए वर्क वीजा अप्लाई करता है। अब वर्क वीजा जो है वो अप्लाई करते हैं every 5th of April, every year 5th of April से आपका H1B वर्क वीजा अप्लाई होता है। H1B वर्क वीजा जो है इट्स लॉटरी सिस्टम होती है। एवरी ईयर जो है वो 60,000 पीपल जो है वो लॉटरी में एक्सेप्ट होते हैं। अब when you are physical therapist you have a higher degree, बैचलर से ऊपर होता है, like DPT होती है आपके पास या मास्टर होते हैं, तो you have more chances, double the chances एक्सेप्ट होने के लिए, क्योंकि आप दो दफा जो है लॉटरी में अप्रूव होते हो। अब nobody can say कि भाई आप अप्रूव हो गए, it's pure luck। A lot of people I have seen my friends like you know जो कि फर्स्ट टाइम पे जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ उनका लॉटरी, उन्होंने सेकंड ईयर दोबारा अप्लाई किया और सेकंड टाइम पे जो है उनका लॉटरी एक्सेप्ट हुआ। मेरा फर्स्ट टाइम पे एक्सेप्ट हो गया था। इफ यू हैव अ हायर डिग्री, लाइक मेरे पास मास्टर्स था, अगर आपके पास हायर डिग्री होती है तो इट्स इजियर फॉर यू टू लाइक यू नो गेट एक्सेप्टेड इन द लॉटरी। आपका लॉटरी में एक्सेप्ट होता है, देन यू गो टू द एम्बेसी अगेन टू गेट योर वर्क वीजा। फिर जब आपको वर्क वीजा मिलता है उसके बाद देन यू कैन कम टू यूएस और फिर देन यू स्टार्ट वर्किंग एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट इन यूएस। तो आपका एनपीटी इज द मेन पार्ट जो आपको एग्जाम पास करना होता है। पर एग्जाम पास करने के बाद भी देयर इज अ लॉन्ग टाइम, लाइक यू नो अगर लेट्स सी आपने एग्जाम पास किया, आपने अप्रैल में एग्जाम दिया और अप्रैल के एग्जाम लेने के बाद जो है आपको लाइसेंस मिला लाइक अप्रैल की 6 तारीख को, लाइक 1 अप्रैल को मैंने एग्जाम दिया था तो अप्रैल 6 को मुझे लाइसेंस मिला। तो आई हैड टू वेट द एंटायर ईयर बिकॉज उस ईयर मैं H1B अप्लाई नहीं कर सकती थी। तो नेक्स्ट ईयर मुझे H1B अप्लाई करना पड़ा क्योंकि H1B जो है इट्स ओनली वंस अ ईयर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि लाइक यू नो जब आप टाइमलाइन बना रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि भाई आपकी टाइमलाइन सही है, आप सारी चीजें कंसिडर कर रहे हो। नाउ अब जो है मैं it's just like financial responsibility का page है। I just want to give you guys like a little introduction, like you know how much it will cost like usually.
So जब आप टाइप 1 के लिए अप्लाई करते हो तो that usually is $1,340 जो टाइप 1 आप सर्विस लेते हो। उसके बाद जब आप रिपोर्ट आती है, आपको डेफिशिएंसीज पूरी करनी होती है, तो डिपेंडिंग हाउ मच डेफिशिएंसीज यू हैव उसके आप you can say like between $200 to $1,000 आपको उसमें लगते हैं डेफिशिएंसीज पूरी करने में। फिर आप रीवैल्यूएशन देते हो, रीवैल्यूएशन के अनदर 870 चार्जेस है। इसमें प्लान इंक्लूड नहीं, अगर आप प्लान सर्विस लोगे तो उसके अनदर $400 होंगे। स्टेट लाइसेंस के डिपेंडिंग ऑन द स्टेट $100 to $150 होते हैं। फिर जब आप एनपीटी एग्जाम जो है आप वो करते हो जब आप रजिस्टर करवाते हो उसके अनदर फी है $485। फिर आप टेस्ट सेंटर बुक करते हो उसके $70 to $100 डिफरेंट होता है। फिर आप विजिट वीजा अप्लाई करते हो या स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो उसकी अलग दूसरी फीस होती है। इफ यू आर गोइंग ऑन स्टूडेंट वीजा आपने जो कोर्स लिया है उसकी कोर्स की अलग फी होती है। तो इट्स अ प्रीटी लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। आपको मिनिमम आपको $3,000 to $4,000 जो है $3,000 to $4,000 जो है वो आपको लगते हैं, which is around like 5 to 7 lakh in US. वो भी if everything is going perfectly, like if there's no deficiencies, if there's only one time deficiencies or revaluation करें तो अगर ज़्यादा होता है तो it can easily go up more than $5,000 to $6,000। अब ये जो है इस स्लाइड पे जो है मैंने अपनी टाइमलाइन बताई है कि जो मैंने कैसे जो है वो आईटी में जब मैंने अपना सारा प्रोसेस किया था तो मैंने कैसे प्रोसेस किया था। मैंने अपना प्रोसेस शुरू किया था अप्रैल ऑफ 2012। तो मैंने अपना जब प्रोसेस शुरू किया था तो मुझे जो है वो न्यूयॉर्क में काम करना था, तो मैंने न्यूयॉर्क की वेरिफिकेशन की थी। मैंने पहले आपको बताया था कि न्यूयॉर्क के लिए बिल्कुल सेपरेट क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको H1 नहीं लेना पड़ता, उसके लिए आपको न्यूयॉर्क स्टेट की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है CCBT से। तो मैंने अपना न्यूयॉर्क स्टेट की वेरिफिकेशन कराई थी, उसमें 3 months लगे थे। उसके बाद फिर मैंने न्यूयॉर्क स्टेट से जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी और क्रेडेंशियलिंग करवाई थी, तो उसके 3 months और लगे थे। अब उस जब वो आफ्टर 6 months मुझे उन्होंने डेफिशिएंसी ला के दी थी बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी उन्होंने बोला था कि आपकी बायोलॉजी एक्चुअली साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी मुझे कवर करना था। फिर मैंने क्लैब बुक करवाया था और क्लैब की प्रिपरेशन करने के बाद जो है मैंने क्लैब दिया था। और क्लैब अच्छा अब न्यूयॉर्क के लिए जो है आपको HTTP पे नहीं देना पड़ता, सेंड करना पड़ता अपना स्कोर, डायरेक्ट न्यूयॉर्क स्टेट को सेंड करना पड़ता है स्कोर। तो आफ्टर गिविंग क्लैब मुझे जो है वो एलिजिबिलिटी मिल गई थी। न्यूयॉर्क स्टेट ने बोला था कि नहीं, यू आर एलिजिबल टू टेक द टेस्ट। फिर मुझे ऑथराइजेशन टेस्ट का लेटर आ गया था और लेटर आने के बाद जो है मैंने अपना विजिट वीजा अप्लाई किया था। विजिट वीजा अप्लाई करने के बाद उसके बाद फिर मैंने एनपीटी के टेस्ट यूएस आके मैंने एनपीटी के टेस्ट लिया। एनपीटी पास करने के बाद जो है अब जब मैंने पास कर लिया फिर क्योंकि मुझे वर्क वीजा पे आना था, फिर मुझे दोबारा टाइप 1 लेना पड़ा, क्योंकि वर्क वीजा के लिए आपको टाइप 1 लेना जरूरी होता है। आप इवन अगर आप पास कर भी लो एनपीटी, यू कैन कम टू यूएस अंटिल यू हैव द हेल्थ केयर सर्टिफिकेट। तो फिर मैंने टाइप 1 इवैल्यूएशन करवाई। टाइप 1 इवैल्यूएशन के बाद मुझे डेफिशिएंसीज निकली 3 प्रोफेशनल कोर्सेज में और 1 बायोलॉजी में। तो वो सारी डेफिशिएंसीज मुझे ऑनलाइन कोर्सेज लेने पड़े और ऑनलाइन कोर्सेज करके जो है उसमें 3 months और लगे। वो करने के बाद मैंने रिवैल्यूएशन करवाई। रिवैल्यूएशन में जो है फिर जो है वो 1.5 month लगा। फिर 1.5 month के बाद मुझे टाइप 1 सर्टिफिकेट मिला। जब मुझे टाइप 1 सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर मैंने एजेंसीज को अप्रोच किया और एजेंसीज ने मेरा H1B अप्लाई किया। H1B अप्लाई करने के बाद 6 months लगते हैं लॉटरी में अप्रूव होने के लिए। लॉटरी में अप्रूव हो गए, उसके बाद जो है मैंने काम स्टार्ट किया सितंबर से, अक्टूबर से एक्चुअली। तो सितंबर में मैं आई थी। उसके बाद थोड़ी सी और क्रेडेंशियलिंग होती है, आपको जो है वो फिंगरप्रिंट्स करवाने होते हैं यहाँ यूएस आके और रजिस्टर करना होता है। उसके बाद तो मुझे टोटल जो मुझे टाइमलाइन जो मेरी टाइमलाइन थी वो 3 years और 6 months थी, which is very good क्योंकि I was on top of everything, like जैसे ही मुझे डेफिशिएंसी आती थी वैसे ही मैं जो है वो कोर्सेज साइन अप किया करके जो है मैंने कोर्सेज लिए। I didn't like lack or like I didn't say कि भाई oh नहीं अभी थोड़ा टाइम लेते हैं and stuff like that. So if you are very on top of your game and like if you wanna get to US quickly, then you will take at least 3 years. I could have saved 6 months in between, but like 3 years to kahin nahi gaya. Once you start the process, you take 3 years to get to US. Considering like आपको विजिट वीजा मिल गया, आपको डेफिशिएंसीज कम लगी, एक दफा लगी, so like
there are many things which can go wrong in this timeline. Like kahin bhi jo hai, you can get stuck. But like, you know, if you are on top of it and you're working towards it, it's achievable to get to US in 3 years. अच्छा, ये सब के बाद अब ये इतना टाइम और इतना पैसा लगाने के बाद the question is it worth it? Like, you know, is it worth to come to US as a physical therapist? If I say for my experience, I would say yes. Okay, like whatever, like I know it's a long process, it's a lengthy process, like, you know, but like the amount of respect you get as a physical therapist, the advancement in the physical therapy field, it's so much and it's so good that I would recommend that everyone should go through this process. Everyone should, like, you know, apply to US and come to US and have, like, you know, gain the experience. But like obviously everybody is different. Like, you know, if my goal was to go to US because my family was moving to US, so mere paas ek additional motivation thi. But like if you are very, like, you know, motivated as a physical therapist, you can learn so much in US just by working there. Like, you know, and then you can, if you want to come back to Pakistan, you can apply those things in Pakistan, and like, you know, it's worth spending that much time and amount, like, you know, for US. Now, second process hai UK ka, like, you know, the दूसरी country जो कि बहुत appeal करती है लोगों को is like UK. UK का जो है वो, it's a very straightforward process. It's the most easy process क्योंकि आपको कोई टेस्ट नहीं लेना पड़ता, टेस्ट पास नहीं करना पड़ता. तो आपको क्या करना पड़ता है, आप you can submit a paper-based application from Pakistan. Like, you don't have to go to UK to submit the application. आप फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करते हो, वो आपको फिल करते हो, फिल करने के बाद आप सबमिट करते हो, एंड देन दे रिव्यू दैट फॉर्म एंड देन दे टेल यू इफ यू कैन गेट लाइक हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल रजिस्ट्रेशन. उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हेल्थ HCPC रजिस्ट्रेशन होती है, वो उनकी प्रोफेशनल काउंसिल होती है जो कि एवरीवन हैज टू टेक टू वर्क एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन UK. वो पेपर बेस्ड एप्लीकेशन होती है. उसमें जो है they want you, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो they go through the application and they want you to, like, you know, see if you meet all their standards of proficiency, standards of conduct, ethics, like, you know, continuing professional development. So the key is to go through to read all those standard of proficiencies and standard of conducts, and उसमें से आप जो है जो key points होते हैं उनको पिक करके when you submit your application, उसमें वो key points जो है ना, जो key words जो use करते हैं, you put those key words in, ताकि they know that, you know, you are familiar with evidence-based practice, you use reliable outcome measures. तो जो important जो चीजें उनके लिए important हैं, जो कि उन्होंने अपने standards of proficiency और standards of conduct में डाली हुई होती हैं, वो आप जो है include करते हो अपनी application में, ताकि they know कि भाई, you know, you are equivalent to a UK-based फिजियोथेरेपिस्ट. तो वो कीवर्ड्स देख के आप जो है वो सबमिट करते हो अपनी एप्लीकेशन. जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा उतने लेस चांसेस होंगे आपके पास रिजेक्शन के. इफ यू आर लाइक अ न्यू ग्रेजुएट, then they probably not going to give you HCPC, especially if you're like, you know, if you're foreign qualified. But आपके पास, if you have like more than 2 years experience, then based on that experience they're going to consider you more. तो उस पर डिपेंड करता है. If you go to UK and if you have a degree from there, that's like, you know, that's an additional plus point. So, like, you know, then you're gonna have a higher chance of getting registered as a HCPC physiotherapist. So it all depends कि आपने एप्लीकेशन कैसे भरी है. तो उसमें जो है ज़्यादा टाइम, सारा टाइम लगता है, वो लगता है कि आपने कितनी थॉरली जो है वो बैठ के एप्लीकेशन, और कितना टाइम एफर्ट पुट किया है एप्लीकेशन फिल करने के लिए और सबमिट करने से पहले. और एक और जो रिक्वायरमेंट है, उनको IELTS चाहिए होता है, बैंड 7 चाहिए होता है उनको, विद नो एलिमेंट लेस देन बैंड 6.5. इसकी एप्लीकेशन फी इज वेरी, like, you know, it's minimal. It's like £495. So as compared to US, it's like cheaper. But once you get the HCPC in registration, the thing which it's hard is to get the work visa in UK. क्योंकि आप यहाँ पे तो पाकिस्तान में होते हो,
So if someone wants to give you a work visa in UK, then they need to make sure that वो embassy को बोलें कि भाई I could not find a physiotherapist in the entire UK. I could not find a physiotherapist in the entire EU, which is European Union, and that's why I'm asking this person from Pakistan to come and work with me, which is probably like which is not going to happen, because either you are like a very genius physiotherapist, that's not going to happen. So जो work visa Pakistan में रह के जो work visa मिलना है, that's very difficult. So the best way to get the work visa in UK is to go there as a student. Once you go there as a student, then you can work with that company, physiotherapist company as a student physiotherapist. And if you have like a 6 months of experience with them, with that company as a observership or something, then they can hire you based on that observership. So this person has been working with us for like 6 months. We know that person and we want to hire that person. So after student visa expire होने वाला होता है, तो expire होने से जो है आपके पास आपकी डिग्री खत्म होती है, तो आपके पास 3 months का grace period होता है. So उस 3 months में you can start processing your work visa after student visa, and then they can give you the work visa. You can get the work visa. But तो सारा जो एक्सपेंस होता है वो यूके में जो है वो रजिस्ट्रेशन मिलने में एक्सपेंस लगता है कि आपको स्टूडेंट वीजा में जाके आपको वहाँ पे कोर्स की फी भरनी पड़ती है. कोर्सेज आर बिटवीन 10,000 to 20,000 pounds. तो वो फीस वो एक्सपेंसिव होता है. You get 20 hours of work permit, so you can work as 20 hours. So you can do observership or internship for 20 hours in a physical therapist facility, or then you can switch to work visa. But after work visa milne ke baad bhi, then it's not easy to get immigration, UK immigration. Usme jo hai, they make it harder for you. But for US, once you get the work visa, because Pakistan se log nahi aate hain, there is no backlog. So after work visa, your agency can apply for your immigration, and you can get immigration within a year. So there are pros and cons on both, for UK and US. But whatever is better for you, you can go that route. So ये सब होने के बाद अब जो final points which I have for you guys is that start your process as soon as you graduate, because the sooner you're going to start, the sooner you're going to get to the point where you can go to US or UK and take your test in US especially. Then be on top of your case. You can email HCPT as much as you can. If you're not clear, email them, ask them before submitting an application. Ask them what do they need, what do they require. So our syllabus may be extensive. If they are asking for if they think that there's a deficiency, and if you think that you have taken the course, you can ask your university to send them a letter saying that, oh, he has taken this course and he has the credit hours in this course. Again, make a timeline and try to stick to it. Make sure that you know which state you want to go to. Make sure you know when is your date when you want to go 3 साल के बाद. Meanwhile, जब आपका ये process चल रहा होता है SCPT credentialing का, it's such a long process. Study for NPTE. NPTE is a long exam. It's a 5-hour exam. It's 250 questions, one minute per question. So study for NPTE meanwhile, because once you're gonna get eligibility, then you don't want to spend another year to study for NPTE. You should study for NPTE while you submit application. Once you get the job offer, when you're negotiating with the agencies, negotiate when are they going to apply for your green card? When are they going to, how long you have to work with them? Are they going to give you healthcare benefits or not? So negotiate all your terms. Be upfront. You don't have to be oh, they are giving you a favor. They're not giving you a favor. They are you are employed. You are their employee. So they want you to be their. They want you to be their employee. So they're gonna negotiate. So negotiate with the agencies. Just focus that you have to come to US and just be patient and be vigilant. You have to do the work.
and like I said, if I can do it, anyone can do it. So you can do this. And I think that's all about it. So if you have any questions now, you can ask Dr. Mayor. You can ask. अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन ये था आया हमारे पास कि कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें टॉफल नहीं चाहिए? Oh, it's a good question. There's only 5 states जिसमें TOEFL नहीं चाहिए, but the thing is FCCPT जब आपको healthcare worker visa चाहिए होता है ना immigration के लिए, FCCPT asks for TOEFL. So there are 5 states which are not going to require TOEFL, but like FCCPT requires TOEFL, तो आपको TOEFL तो देना ही पड़ेगा. There is no way out. Because if you want to come there as a on a work visa, then you have to get the certificate. और certificate के लिए आपको TOEFL चाहिए. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन तो आपने आंसर कर ही दिया उसका, वो ये था कि कितना अर्सा लगता है इस सारे प्रोसेस को? Minimum 3 years. But maximum it can take to I know I've seen people who are in the process for over 5 to 6 years. It really depends on the आकिफ? Yes. हाँ, ऑडियंस में से अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेज कर सकता है. ये 2 क्वेश्चंस ही थे जो आपने. उसको अनम्यूट कर दीजिए. मैं रेज हैंड देख लेता हूँ अगर किसी का है तो. 2 of the participants have raised their hands. Hadim Ali, you can speak now. Please unmute yourself. Hadim Ali, I have unmuted you already. You can unmute yourself and ask the question. Kainat, you can also ask your question. I think everything is clear now. That's why they are not speaking there. I think that's it, Dr. Umair. It's good. If you guys have any Okay, questions. Dr. Mariam, if you have any final word, please share. My advice would be to be patient and to start working on this as soon as possible. If you are graduating, if you know you're going to graduate in May, you should start working on it, and apply for FCPT in June. That would be, the quick you are, the quicker you're going to get to US. So my final advice is going to be, I know it's hard and it's a long process and an expensive process, but it's worth it. So you should, people who are willing to put hard work and stuff, they should apply for FCPT accreditation as soon as possible. Dr. Kumail, do you have any question to ask? Thank you so much. I loved this session. I guess we'll definitely, if in future, if someone has any query, he or she can write to Dr. Mariam. We can share Dr. Mariam's official email. So Dr. Mariam will definitely going to help us out in all the process. So thanks to you, sir, for hosting and for everything. Thanks to Dr. Mariam and everyone who joined us on this session. I guess we will conclude this session, sir. Dr. Umair.
थैंक यू कुमेल एंड डॉक्टर मरियम, आपने हमें टाइम दिया, और डॉक्टर गिलानी ख़ास तौर पे जिन्होंने ये अरेंज करवाया, एंड कुमेल थैंक यू वेरी मच, आपने सारा बैकग्राउंड में काम किया। Thank you. sir, for this webinar. A big thanks to you and Dr. Mariam and Professor Dr. Said Amir Gilani, sir, for hosting all this, for hosting all of us, and for giving us the opportunity to give us a platform so people can apply for US and UK as a physiotherapist. Thanks to you, sir. Yeah, thank you for having me. It was really nice. Thank you very much, Dr. Mariam.